Dear students, we are studying topic inheritance of one gene. In our previous class, we talked that when a tall plant is crossed with a dwarf plant, in F1 generation all plants are tall, but in F2 generation there is ratio of 3:1, means 3 plants are tall and 1 plant is dwarf. So what we observed that in F1 generation only one trait is observed, but in F2 generation both the traits are observed. All of you are familiar with the word trait means characters. यहाँ पर हमने जो trait consider किया है that is height of the plant. हाइट क्या है? आइदर इट मे बी टॉल और इट मे बी ड्वार्फ. जब टॉल प्लांट को ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस करते हैं F1 जनरेशन में सब प्लांट्स टॉल हैं, बट इन F2 जनरेशन देयर इज रेशियो ऑफ 3:1, मीन्स 3 plants are tall and 1 is dwarf. So based on these observations, Mendel proposed something that there is something which is passing from one generation to another generation and that is unchanged. तो मेंडल इस कंक्लूजन पर पहुंचा कि देयर इज़ समथिंग जो कि नेक्स्ट जनरेशन में क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है. अब नेक्स्ट जनरेशन की फॉर्मेशन में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? गैमेट्स. मेंडल ने वहाँ पर जो पास हो रहा है उन थिंग्स के लिए वर्ड यूज़ किया फैक्टर्स, but nowadays this word factors is not used. In place of that genes word is used. Means क्या ट्रांसफ़र हो रहा है? जीन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं. सो जीन्स आर कॉल्ड द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस बिकॉज दे हैव द इंफॉर्मेशन and that is required to express a particular trait in an organism. Means genes, they are transferred from one generation to another generation and they have all the informations which are transferred from one generation to another generation. Now genes, they are responsible for a particular trait, and if they code for a contrasting traits they are known as alleles, and they are slightly different forms of the same gene. For example, let us take the example of gene which is responsible for height of the plant. So the height of the plant, here we will write it as, it is represented by T. Now if it is one more pair of this gene is there, then it is allele. This and this, they are also alleles. मीन्स एक ही ट्रेट के लिए जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एलेल्स कहते हैं. एंड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज एलेल्स व्हाट वी आर यूजिंग अल्फ़ाबेट्स, and capital letter is used to trait expressed at the F1 stage. If you remember our previous class, then what we wrote that in F1 generation all the plants are tall, and we wrote that in F1 generation all plants are tall, and we wrote T. means we express the result by using English alphabets. और F1 generation में क्योंकि सभी tall थे तो हमने क्या word use किया? Which letter we used? Capital T. means this T is the responsible for height, and small t also. हमने previous plant, अगर हम dwarf plant की बात करते हैं, then the genetic composition is small t. For for this large plant or tall plant, this is capital T. means what we are using English alphabets. T जो है वो हमने tall plant के लिए लिया, and small t we are using for dwarf plant. So these T and T means capital T and small t, they are alleles of each other, and hence how we can write? We can write this is one form of allele, this is the other form, and it may be capital T and small t. So what are these? These are the pairs of alleles, and these are responsible for which trait? Height. मेंडल ने क्या किया? ट्रू ब्रीडिंग लाइंस जो हैं, चाहे वो टॉल हो या ड्वार्फ पी वेराइटी, उनके लिए उसने क्या बताया? उनके पेयर ऑफ जीन्स, यानी कि जो प्लांट है दैट मे बी होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस. नाउ व्हाट इज़ होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस कंडीशन? होमोजाइगस कंडीशन मीन्स इफ़ अ प्लांट हैज़ एलेल्स ऑफ द सेम टाइप, मीन्स जीन्स जो हैं वो सेम प्रेजेंट है, यानी कैपिटल टी है. दिस इज़ बिकॉज बोथ आर सेम.
both genes are same, so it is homozygous. Then small t, it is homozygous, means कि कैपिटल टी एंड स्मॉल टी ये क्या है, दीज आर द जीनोटाइप. नाउ जीनोटाइप वर्ड आप लोगों के लिए नया आ गया. जीनोटाइप मीन्स द जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट. तो यानी ट्रेट यहाँ हाइट हो गया. हाइट के लिए जो जेनेटिक कंपोजिशन रिस्पॉन्सिबल है वो क्या हो सकती है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, या फिर वन कैपिटल एंड वन स्मॉल. अगर दोनों ही जीन्स सेम हैं, मीन्स अगर वो कैपिटल हैं लाइक दिस, और इफ़ इट इज़ स्मॉल टी, दोनों ही कंडीशंस क्या हैं, ये होमोजाइगस कंडीशन है. एंड द प्लांट, इट इज़ दिस प्लांट विल बी टॉल एंड दिस प्लांट विल बी dwarf. What Mendel proposed and what he found, that the phenotype of F1 heterozygote to be exactly like that parent TT in appearance. Yes. See, when we cross these two plants, capital T means tall. So genetic composition is this, and dwarf means small t. जब ये क्या है, पेरेंट्स हैं. जब उसने क्रॉस किया इन F1 जनरेशन, व्हाट ही ऑब्जर्व, कि देखिए आप रिजल्ट, दैट ऑल द प्लांट्स आर टॉल. यहाँ पर जो सारे के सारे प्लांट्स हैं वो क्या हैं, टॉल हैं. ये टॉल क्यों हुए, इन एक्चुअल कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस इज़ द जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ दीज प्लांट्स. This capital T is called as dominant gene. Why it is called dominant gene? Because this gene in single is able to express itself. यानी कैपिटल T, उसके साथ एक और जीन होना ज़रूरी है, क्योंकि ये पेयर में एग्जिस्ट करते हैं. लेकिन जो है कैपिटल के साथ ज़रूरी नहीं है कैपिटल ही हो. स्मॉल t प्रेजेंट है, लेकिन प्लांट क्या है, टॉल प्लांट है. मीन्स जो अपने आप को अकेले, इस टी ने अकेले ही अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया, एंड द प्लांट हैज़ बिकम टॉल. So this gene is called as dominant gene. And while the other factor, this small t, because it is not able to express itself, otherwise small t किसके लिए रिस्पॉन्सिबल था, dwarf के लिए. लेकिन प्लांट dwarf ना होकर क्या बन गया है, टॉल बन गया है, क्योंकि जो कैपिटल t है वो डोमिनेंट है. तो जीन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल टू एक्सप्रेस itself, it is called as dominant gene. And when the gene which is not responsible to express itself, it is called a recessive gene. So in this case, capital T is dominant over small t. And what he observed, that the identical behavior for all other characters, means चाहे उसने height ली, चाहे उसने color of the flower लिया, or whether he considered the shape of the pod, shape of the seed, what he observed कि जो रिज़ल्ट था, दैट वाज सेम फॉर ऑल द कैरेक्टर्स, कि यानी F1 जनरेशन में सिर्फ डोमिनेंट जीन ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा था. एंड इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैव टॉक्ड कि जो उसने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे, उसमें से डोमिनेंट ट्रेट क्या थे. इफ़ वी टॉक अबाउट द सीड शेप, देन राउंड इज़ डोमिनेंट. इफ़ वी टॉक अबाउट पोड कलर, देन ग्रीन इज़ डोमिनेंट. इफ़ वी टॉक अबाउट द हाइट, देन टॉल इज़ डोमिनेंट. एंड इफ़ वी कंसीडर सीड कलर, then yellow is dominant. So what he observed, that in F1 generation, for all the characters what was present, the dominant gene was able to express itself. Now we are using the English alphabets for this representation of these characters or traits. Capital T we are using for height and tall plant, but we do not use small d for dwarf, क्योंकि फिर वो क्या होगा, हमें लर्न करने में there will be complexity. So what we do, अगर हमने dominant gene के लिए capital T लिया है, so for recessive gene we will write small t. इससे क्या हो जाता है, जो learning है that becomes easy. Now here t and small t, they are the alleles of the same gene, and alleles, they may be same or they may be different. Just see, we have talked here, there's capital T, it is a pair of allele, capital T, small t. Now what is the difference? What we are able to see here, कि whether it is capital T or small t, यहाँ दोनों के अंदर अगर स्मॉल है, देन इट इज़ स्मॉल फॉर बोथ एंड इट इज़ कैपिटल फॉर बोथ. बट व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द थर्ड वन, दैट हेयर वन इज़ कैपिटल एंड द अदर इज़
स्मॉल। तो एलिल्स जो हैं वो होमोजाइगस भी हो सकते हैं और हेटेरोजाइगस भी। अगर दोनों ही अल्फ़ाबेटिकल केस कैपिटल हैं या स्मॉल है, देन द कंडीशन इज कॉल्ड एज होमोजाइगस, मीन्स दिस कंडीशन इज homozygous. But here one is capital and one is small, so this condition is called as heterozygous condition. क्योंकि हम यहाँ पर एक ही कैरेक्टर को कंसीडर कर रहे हैं, दैट इज़ हाइट ऑफ द प्लांट, एंड फॉर कंट्रोलिंग द हाइट ऑफ द प्लांट वन पेयर ऑफ जीन मीन्स कि एलिल जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं. सो दिस टाइप ऑफ क्रॉस इज कॉल्ड एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस. मोनो मीन्स वन कैरेक्टर वी हैव कंसीडर्ड. नाउ एज मेंडल डिड मैनी ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स, तो उसने क्या देखा कि जब F1 को क्रॉस किया उसने प्लांट्स को, पेरेंट्स को क्रॉस किया, F1 जनरेशन मिली. F1 जनरेशन में ऑल द प्लांट्स वर टॉल and there was no blending in the F2 generation also. Here you are able to see F2 generation. This is F2 generation, tall, tall, tall and dwarf. मीन्स इन F2 जनरेशन व्हाट हैपन, F1 में कोई भी ड्वार्फ नहीं था, लेकिन F2 जनरेशन में क्या अपीयर हो गया, कौन सा कैरेक्टर अपीयर हो गया, ड्वार्फ. और कोई ब्लेंडिंग नहीं थी. ब्लेंडिंग का मतलब मिक्सिंग नहीं थी कि एक टॉल है और दूसरा उससे स्मॉल हाइट है और फिर दूसरा थर्ड उससे बिल्कुल स्मॉल. इस तरह की कोई ब्लेंडिंग नहीं थी. आइदर द प्लांट्स वर टॉल और द प्लांट्स वर ड्वार्फ. नाउ हाउ इट हैपेंड, देखिए जब भी गैमेट फॉर्मेशन होती है, जो क्रोमोसोम्स हैं वो हाफ हो जाते हैं, यानी जीन्स जो हैं वो सेग्रीगेट हो गए. अभी हमने पढ़ा कि वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं. कैपिटल टी और स्मॉल टी मीन्स दे आर एग्जिस्टिंग इन पेयर्स. लेकिन वेन नेवर द गैमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, मियोसिस happens and there is segregation or separation of the alleles. अब इसमें क्या होगा, जो एक एलिल है that may be transmitted to one gamete and the other allele may be transmitted to the other gamete, and this segregation of alleles जो है that is a random process and there is 50% chance of getting that allele in a particular gamete, and it has been verified by various of the results. फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ वी राइट कैपिटल टी, और जब ये बॉडी गैमेट बनाएगी तो हो सकता है वन गैमेट में एक कैपिटल टी, इन द अदर गैमेट देन अदर कैपिटल टी. एंड नाउ लेट अस रिप्लेस दिस एग्जाम्पल बाय हेटेरोजाइगस कंडीशन. सपोज दिस इज कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, parent body. Now it is producing gametes, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी. तो क्या हुआ, 50-50% चांसेस हो गए. हो सकता है किसी एक गैमेट के पास कैपिटल टी चला जाए और दूसरे गैमेट के पास स्मॉल टी चला जाए. सो 50% चांस ऑफ गैमेट कंटेनिंग आइदर एलील इज़ देयर. एंड जब हम इसकी क्रॉसिंग करवाते हैं फर्टिलाइजेशन में, सो व्हाट मे हैपन, हो सकता है कैपिटल टी के साथ फ्यूज़ हो और सकता है कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ फ्यूज़ हो जाए. सो यानी कि हेटेरोजाइगस कंडीशन इज़ देयर, जहाँ पर दो डिफरेंट जीन्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं. दिस इज़ हेटेरोजाइगस कंडीशन. एंड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इट इज़ डन बाय और इट इज़ स्टडीड बाय कंसीडरिंग दिस पुनेट स्क्वायर बॉक्स एज यू आर एबल टू सी इन द डायग्राम ऑल्सो. दिस इज़ monohybrid cross. See what it is written here, capital T small t, इट इज़ प्लांट, इट इज़ हेटेरोजाइगस. क्यों हेटेरोजाइगस है, क्योंकि यहाँ पर जो है जेनेटिक कंपोजिशन डिफरेंट है, लेकिन हमने एक ही कैरेक्टर को स्टडी किया. डेट्स वाई दिस कंडीशन इज़ नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस. और यहाँ पर हम अगर इसका रिजल्ट देखते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, तो हम क्या देख पा रहे हैं, दिस कैपिटल टी, this small t, this box which is made here, it is called as Punnett square box, and this was developed by a British geneticist and his name was Reginald C. Punnett, and because of for his name this box has been named as Punnett square box. And it is the graphical representation, जो भी हम probabilities
जो हैं हम नोट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं कि कौन कौन से जेनेटिक कंपोजिशन हो सकती है किसी भी ऑफस्प्रिंग की, उसे हम इस बॉक्स में लिखते हैं। पॉसिबल गैमेट्स जो हैं दे आर रिटन ऑन टू साइड्स, यूजुअली द टॉप रो एंड द लेफ्ट कॉलम, और इसमें सारे के सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो लिखे जाते हैं एज यू सी हेयर। कैपिटल टी टॉल, ड्वार्फ स्मॉल टी, गैमेट्स बन गए कैपिटल टी फॉर टॉल प्लांट एंड स्मॉल टी फॉर ड्वार्फ प्लांट। नाउ व्हाट विल हैपन, देयर विल बी क्रॉसिंग। हो सकता है कैपिटल टी क्रॉस हो जाए इसके साथ, सो इट विल फॉर्म कैपिटल टी स्मॉल टी. It may combine with this one, then again capital T small t. Now this may combine with this and this may combine with this. So how many possibilities are there? 4 possibilities are there. And what we are able to see कि इन चारों की चारों कंडीशंस के अंदर जो जेनेटिक कंपोजिशन है दैट इज़ कैपिटल टी स्मॉल टी। एंड वॉट वी हैव स्टडीड कि जब एक डोमिनेंट जीन प्रेजेंट होता है दैट इज़ एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ अलोन, एंड दैट्स वाई द ऑल प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन दे आर टॉल। मेंडल ने फिर क्या किया, उन टॉल प्लांट्स को जो है उनकी सेल्फिंग करवाई। सेल्फ पॉलिनेशन के बाद जो है क्या होता है, यहाँ सबसे पहले प्लांट्स पेरेंट्स क्या फॉर्म करेंगे, गैमेट्स फॉर्म करेंगे। सो टॉल प्लांट ने गैमेट फॉर्म किया कैपिटल एंड स्मॉल। देन दिस टॉल प्लांट वन कैपिटल एंड अदर इज स्मॉल, क्योंकि उसकी जेनेटिक कंपोजिशन ही वैसी थी। ये कहाँ से आई, F1 जनरेशन से। F1 जनरेशन के किन्हीं 2 प्लांट्स की उसने सेल्फिंग की, गैमेट फॉर्मेशन हुई। अब हम क्या देख पा रहे हैं, दिस कैपिटल टी विल कंबाइन विद दिस टॉल, दिस विद दिस अगेन प्लांट इज टॉल, दिस विद दिस अगेन प्लांट इज टॉल। यानी 3 कंडीशंस में हमें प्लांट क्या मिल रहा है, टॉल। बट इन द 4th कंडीशन स्मॉल टी, और ये क्या फॉर्म कर रहा है, इट इज़ फॉर्मिंग अ ड्वार्फ प्लांट एज वी आर एबल टू सी हेयर। 3 आर टॉल एंड 1 इज ड्वार्फ। इफ़ वी टॉक अबाउट द फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो में हम क्या देख पा रहे हैं, फिनोटिपिक मीन्स उसका जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है, एक्सप्रेशन है, तो 3 प्लांट्स टॉल हैं एंड 1 प्लांट इज ड्वार्फ। लेकिन अगर हम जेनेटिक कंपोजिशन की बात करते हैं तो हम क्या देख पा रहे हैं, होमोजाइगस टॉल 1, होमोजाइगस ड्वार्फ 1 एंड दिस इज हेटेरोजाइगस टॉल, यानी कि 1:2:1। दिस इज द जीनोटिपिक रेशियो ऑफ F2 generation when Mendel considered 1 कैरेक्टर मीन्स फॉर मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जो रिजल्ट है फिनोटिपिक रेशियो 3:1 एंड जीनोटिपिक रेशियो इज 1:2:1। एंड इन दिस वे Mendel gave the result that the ratio we are getting, that is 1:2:1 for the genotypic expression, and for phenotypic expression it is 3:1। अब यहाँ जो है मेंडल ने क्या देखा कि उसने मैथमेटिकल प्रोबेबिलिटी यूज़ की एंड उसने क्या देखा कि जो डोमिनेंट ट्रेट है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। नाउ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू नो द जेनेटिक कंपोजिशन। सपोज हमने एक टॉल प्लांट को कंसीडर किया, वी आर सिंपली सेइंग किसी प्लांट को देख करके कि इट इज़ टॉल प्लांट, तो क्या हमें पता चलेगा कि उसकी जो जेनेटिक कंपोजिशन है वो कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है। By simply looking at that plant, we cannot say that the plant has homozygous trait or heterozygous trait. उसके लिए मेंडल ने क्या किया, एक टेस्ट क्रॉस किए। टेस्ट क्रॉस में मेंडल ने क्या किया, F2 जनरेशन को जो है उसने किसके साथ किया, क्रॉस ड्वार्फ प्लांट के साथ। टॉल प्लांट लिया उसने F2 जनरेशन का। नाउ यू सी हेयर टॉल प्लांट ऑफ F2 जनरेशन क्या है, कैपिटल टी भी हो सकती है कंडीशन, एंड इट मे बी कैपिटल टी और स्मॉल टी। यानी व्हाट मेंडल डिड, he took the plants with these genotypic expression and he did the test cross में उसने उनको किनके साथ क्रॉस किया, ही क्रॉस दीज जेनेटिक कंपोजिशंस विद द ड्वार्फ प्लांट। और ड्वार्फ प्लांट का हमें श्योरिटी है कि जेनेटिक कंपोजिशन क्या होती है, स्मॉल टी एंड दिस इज कॉल्ड एज टेस्ट क्रॉस। मीन्स हाउ विल यू डिफाइन टेस्ट क्रॉस,
when tall plant of F2 generation crossed with dwarf plants. Now the tall plants of F2 generation, they may have two types of genetic composition, and that's why the result will be different. Means if all the dominant traits are taken, and if suppose this is taken, then what will happen? All plants will be tall. But if this genetic composition is taken, then there will be 50% chances of tall plant and 50% chances of dwarf plant. So this is known as test cross, and by doing the test cross he was able to give the observation that, and he was able to give the answer for this question कि जो F2 plants हैं उनकी genetic composition क्या है. अगर F2 plant की genetic composition homozygous थी, यानी कैपिटल T थी, then after test cross the result will be that the all plants will be tall. लेकिन अगर कंडीशन जो है वो क्या थी, उसमें 1 कैपिटल एंड 1 स्मॉल, देन कंडीशन क्या हो जाएगी? फ्लावर द प्लांट्स हाइट विल बी 50% of the plants will be tall and 50% of the plants will be dwarf. Thanks.